Now in this video we will discuss today about Stephen's reduction. But let me tell you that Stephen's reduction is under the heading preparation of aldehydes. तो एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन में मैंने आपको कुछ मेजर मेथड्स बताए थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. फर्स्ट वाज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड दैट इज एसिड क्लोराइड जिसपे आपने रोजनमैन रिडक्शन पढ़ चुके हैं. फिर फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स के अंदर नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने की मेथड पे स्टीफेंस रिडक्शन नेम रिएक्शन है जो हम आज पढ़ेंगे. और बाकी ये कुछ और मेथड से थे जिनको हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट स्टीफेंस रिडक्शन इन डिटेल and with the help of this we will understand how to prepare aldehyde. So let us start the Stephen's reduction reaction. So in this reaction, as I told you, the alkane nitrile or the alkyl nitrile, which is also called as cyanide, on partial reduction with SnCl2 and HCl, this converts it into imine and then followed by hydrolysis in acidic medium, this cyanide will get converted into aldehyde. So Stephen's reduction is a two-step method wherein in first step cyanide reacts with the reducing agent SnCl2 and HCl and gets converted into an imine, and then it is further hydrolyzed into aldehyde. Okay, so there will be two steps. Now let us first discuss some important points about this reagent. SnCl2 plus HCl, as I told, it's a reducing agent. It's a reducing agent. Here in this reaction you will find that this reducing agent is acting only as a partial reduction causing agent. Only partial reduction will take place, right? सिर्फ partial reduction हो रहा है इसीलिए साइनाइड सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है. अगर कंप्लीट रिडक्शन होता तो क्या होता, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता. यही बात हमने कहाँ पढ़ी थी, रोजनमैन रिडक्शन में भी यही बात की थी. वहां भी वो पार्शियल रिडक्शन था, तभी लिंडलर्स कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, वो अल्कोहल नहीं बनाता. सिमिलरली SnCl2 NHCl भी एक पार्शियल रिडक्शन कॉजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है. ओके, अब इसका फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं. तो इट रिमूव्स SnCl2 NHCl, इट रिमूव्स वन पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड को तोड़ देता है साइनाइड के, एंड इट एड्स वन हाइड्रोजन each on carbon and nitrogen of C triple bond N, okay, to form imine. So ये तो मैंने theoretically लिखा कि SnCl2 और HCl partial reduction करके क्या करता है. Now we will write the reaction and then we will understand it further. तो first of all I'll write the skeleton reaction. So starting with alkyl cyanide RCN, as I told you here SnCl2 plus HCl will reduce. Now see, it will reduce this to imine, and in this process what it is going to do, it will remove one pi bond. So this pi bond will be removed, and this reducing agent will add one hydrogen to both carbon and nitrogen, and it will get converted into RCH double bond NH. So what happened, one pi bond is removed and each carbon and nitrogen has got one hydrogen, और इसे कहते हैं imine. Now this imine on further hydrolysis by water and in acidic medium, this will give you RCHO, that is your aldehyde. And what will happen is R, C, H and O, and this part will be lost in the form of NH3. So one byproduct is also produced in this reaction, and that is NH3. Major product is aldehyde. Now let us discuss some example
examples of this reaction. In place of R, supposingly if I take CH3, so the reaction is going to be very same. SnCl2 plus HCl works as a reducing agent. It will break this 1 pi bond, and here what you are going to get, CH3CH double bond NH. Again this is the imine. Now by hydrolysis in acidic medium, this will give you CH3CHO, CH3CHO, and again one molecule of ammonia will be removed. So this is how ammonia is removed. Now supposingly if in place of CH3 I take what, C6H5 group. So before I start with that, let me tell you, this is what this is called as acetonitrile. This is also called as methyl cyanide, whatever name you understand you can use. And this is also called as ethane nitrile. Ethane nitrile, why? Because ethane, for ethane there are 2 carbons, no? That is why ethane nitrile. And then what you have produced over here, so this is 2 carbon aldehyde, so the name is ethanol. So this is how you have converted ethane nitrile into ethanol. Okay. If in place of CH3 we take phenyl group, so we will be having benzyl cyanide like this. So the same reaction here also can be written. You can add SnCl2 and HCl, which works as a reducing agent and does the partial reduction of cyanide, and you will be getting the same product here. Each carbon and hydrogen of the triple bond, each carbon and nitrogen of the triple bond will get 1 hydrogen, and this is called as intermediate amine, which on hydrolysis in acidic medium will give you benzaldehyde and ammonia is removed. Now let us discuss the mechanism of this reaction. Mechanism means how this reaction took place. If we discuss, then it is called as mechanism of the reaction. So as you can see, we have taken SnCl2 as a reducing agent. So this SnCl2, it reacts with 2 molecules of HCl. We took SnCl2 and HCl as the reducing agent. So SnCl2 reacts with 2 moles of HCl and it makes SnCl4 plus 2H plus. This is the first step. So if you inspect this reaction properly, आपको पता चलेगा कि यहाँ SnCl2 में Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. कैसे कैलकुलेट करी? अगर नहीं पता है तो Sn के लिए x ले लें. एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो 2 पे कितना होगा? -1 इंटू 2. एज अ होल SnCl2 न्यूट्रल है तो इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू +2. तो हमने टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली थी? x ली थी और x की वैल्यू क्या निकल आई? +2. So in this compound the oxidation state of Sn is +2 and here it is +4. So similarly you can take out here also the oxidation state and then you can see कि 2H plus यहाँ पे release हुए हैं. तो actually what is happening that Sn2 plus is changing into Sn4 plus. अब ध्यान दें, नाउ यू कैन सी कि इस पूरी रिएक्शन में Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 से +4 में चेंज हुई है. तो ये क्या हुआ है? इंक्रीज इन प्लस चार्ज है और हमें पता है कि इंक्रीज इन प्लस चार्ज मीन्स व्हाट? इंक्रीज इन प्लस चार्ज मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे टिन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तभी तो ये +2 से +4 में कन्वर्ट हुआ है. तो एक्चुअली यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है ये पूरा मैकेनिज्म इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करता है. सो लेट अस डिस्कस द रोल ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये रिएक्शन कैसे होती है? सो नाउ द एक्चुअल मैकेनिज्म स्टार्ट्स. यू विल हैव टू टेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH3C ट्रिपल बॉन्ड N
जो आपका रिएक्टेंट था, इस पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड किधर की तरफ शिफ्ट होता है, नाइट्रोजन, क्योंकि इस कोवलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यानी इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा बाद में। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे खिंच गए तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आया और कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। अब कार्बन पे प्लस चार्ज आने के कारण कार्बन क्या चाहता है कि ये जो लॉस हुआ है इसको फुलफिल करे, तो वो इस लॉस को फुलफिल करने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाता है। तो नाउ सी, पहले लिखते हैं क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ है कि इस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो जो है वो कार्बन का जो बॉन्ड लॉस हुआ था ये वाला, उसे पूरा करने में चला जाएगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो जो है कार्बन को माइनस चार्ज देगा। एक्चुअली इसको ऐसा समझे कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का प्लस चार्ज हटाएगा, ठीक है, प्लस माइनस न्यूट्रल, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे माइनस के फॉर्म में अपीयर होगा। ट्रिपल बॉन्ड टूट चुका है और बन चुका है डबल, क्योंकि ऊपर वाला पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया था और उस पाई के कारण नाइट्रोजन पे भी माइनस चार्ज आया था। तो आई होप आपको समझ आया कि नाइट्रोजन पे माइनस आया है पाई की शिफ्टिंग के कारण, और कार्बन पे माइनस आया है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण। एक इलेक्ट्रॉन ने कार्बन के प्लस को खत्म किया और दूसरे ने इस पे माइनस साइन दिया। अब क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का काम तो समझ आ गया हमें, अब हमें इन 2 हाइड्रोजन्स का एक्शन देखना है। नाउ दीज 2 हाइड्रोजन विल अटैक ऑन दिस। 2 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, H+ लिख सकते हैं। तो एक H+ इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और दूसरा H+ इस नेगेटिव की तरफ, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। सो दिस इज कॉल्ड एज इमाइन। अब इस इमाइन में भी हमें पता है कि नाइट्रोजन क्या चाहता है, फिर से नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो फिर इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ ड्रैग करने की कोशिश करेगा, और इस ड्रैगिंग के कारण ये मॉलिक्यूल फिर से पोलर हो जाएगा। और ध्यान दें क्या होगा कि ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। तो इमाइन में ये फिर से पोलैरिटी डेवलप हो गई। अब होगा इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। अब हाइड्रोलिसिस में आप देखें क्या होगा, वाटर जो है वो किस फॉर्म में है, H+ OH- में ब्रेक होगा, तो यहां से जो नेगेटिव पार्ट है OH- वो इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और H+ किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस नेगेटिव की तरफ। तो अब जैसा जैसा बताया है वैसा इनको जोड़ लेते हैं, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3। CH की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उस पर पॉजिटिव है इसलिए उस पर नेगेटिव वाली बात जाएगी, तो OH उसके पास जाएगा, और NH क्या करेगा, इस H को बुलाएगा, तो ये हो जाएगा NH2। ठीक, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि NH2 एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, और इस पर बैठा हुआ है एक जो है नेगेटिव चार्ज, यहां से अगर ये यहां से छोड़ के जाता है तो ये NH2- के फॉर्म में जाएगा। तो ये क्या करता है, इस मॉलिक्यूल के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर NH2- के फॉर्म में, एज वी नो NH2- इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, ये एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो ये जो है इस इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाना चाहता है, लेकिन कार्बन के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया इन फॉर्म ऑफ -NH2, तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, उसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा। तो जब NH2 जाने की कोशिश करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन सोचता है कि मैं ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करा देता हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं H+ बन जाऊंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इधर शिफ्ट होके पाई बॉन्ड बन जाएगा, यानी यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से H+ के फॉर्म में अलग हो जाएगा। और ये किस इंटेंशन से यहां से जा रहा है, क्योंकि NH2 पे माइनस है, तो ये माइनस इस H+ को अट्रैक्ट करके NH3 बना देगा। अब देखें क्या हुआ, CH3CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा,
और यहां से H प्लस किसके साथ चला जाएगा, NH2 माइनस के साथ और बना लेगा अमोनिया। तो यहां होता है आपका मैकेनिज्म खत्म, ठीक है। और आपने क्या बना दिया है, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और एक अमोनिया। सो दिस वाज द एंटायर मैकेनिज्म। 2 इलेक्ट्रॉन्स का अटैक साइनाइड पे, फिर जो है दोनों कार्बन नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज का डेवलपमेंट, देन अटैक ऑफ 2 हाइड्रोजन दैट इज 2H प्लस, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ इमाइन। फिर इमाइन का हाइड्रोलिसिस, माने उस पे वाटर का एडिशन और वाटर के एडिशन से उसका ब्रेकडाउन, और फिर जो है इनमें क्या हुआ है, NH2 माइनस लीविंग ग्रुप है इसलिए वो जाना चाहेगा और साथ में प्रोटॉन को भी ले जाएगा, NH3 बन जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, एल्डिहाइड। एंड प्लीज टेक अ नोट कि ये रिएक्शन कंप्लीट रिडक्शन नहीं है, अदरवाइज एल्डिहाइड नहीं बनता, यहाँ क्या बनता है, अल्कोहल। So I hope the Stephens reduction and its mechanism is clear to everybody. Thank you for watching.